A tractor rally was organized in the farmers' protest yesterday. The protesters have even conducted a press conference wherein they said that the union government is yet to convey their next steps when it comes to curbing the agitation. Meanwhile, internet restrictions that had been imposed were even lifted from 7 districts of Haryana. The question then that we're putting forth is, when will the siege and politics end, and when will there be some relief for Dilliwalas? Akshit Gupta is joining us live from Ghazipur. Akshit, what is the situation at the Ghazipur border where you're standing today? Well, yes, the farmers continue to camp at the Shambu-Khannori borders, pressing their demands with a new set of demands this time. I come to you live from the Ghazipur border, and I would like to show you how the scenes are here. Of course, the barricades along with the barbed wires and the cemented barricades are still placed here, so that if the farmers try to come nearer this border, then their movement can be thwarted. And on my other side, opposite side, you can see people actually going to Delhi. Then you can see how the movement of traffic is quite slow right now, because the barricades are in place, and for that very reason only the traffic flows of the people are continuing. But meanwhile, I will also like to tell you that the farmers are also protesting and saying that quit WTO, which is a World Trade Organization, and it comes also close on the heels when WTO ministerial meeting is going on in Abu Dhabi from February 26th to February 29th. And they are also asking the union government to press the developed nations to actually take agriculture out of the ambit of the intergovernmental body, because many farmers say that the WTO is actually not working for the farmers, not for the interest of the farmers, and for that very reason only they also want India to exit WTO. Well, of course, the ministerial meeting is going on there, and meanwhile the farmers at the Shambu and Khannori borders are also holding multiple meetings before February 29th, so that after February 29th they can decide their next course of action as to how to proceed further with the protest. Right. Let me also, in fact, quickly bring in Mahendra Mahi live from the Chilla border on the broadcast. Mahendra, what is the situation at the Chilla border today, and what is likely to be the farmers' strategy now going forward? बिल्कुल, देखिए, जिस तरीके से जो शंभू बॉर्डर की बात करें, खनौरी बॉर्डर पे बात करें, जो पंजाब किसान आकर बैठे हैं और उन्हें 2 हफ्ते हो गए। इस बीच इन्होंने भारत बंद का भी ऐलान किया। कल जिस तरीके से संयुक्त किसान मोर्चा और भारतीय किसान यूनियन द्वारा ये कहा गया था कि पूरे देश में ट्रैक्टर मार्च का ऐलान किया जाएगा, यानी कि कल 26 फरवरी को, मगर इसका असर मैं आपको बता दूं नोएडा, ग्रेटर नोएडा में नहीं देखने को मिला। कल जिस तरीके से जो सुबह के वक्त जो राकेश टिकैत के ग्रुप के जो किसान नेता है, वो जेवर से लेकर नोएडा तक ट्रैक्टर मार्च निकालना चाहते थे यमुना एक्सप्रेसवे पर और नोएडा के सड़कों पर, मगर ग्रेटर नोएडा में पुलिस ने उनको वहीं रोका। तकरीबन 100 से अधिक ट्रैक्टर थे, 1000 से अधिक किसान थे, तो वहीं बैठे। वहीं एसडीएम आए अभय सिंह, वहीं जो वहाँ के एसीपी वो वहां पहुंचे, वहां उन्होंने समझाया और बताया कि देखिए, आप यमुना एक्सप्रेसवे वाले रास्ते पर नहीं जा सकते, जिसके कारण आम जनता को बहुत ज्यादा परेशानी होगी। अगर आपको ट्रैक्टर मार्च निकालना है तो आप सर्विस रोड पर निकालिए, अगर आपको प्रदर्शन करना भी, अगर आपको कोई जायज बात करनी है तो बैठ के उसका समाधान निकालेंगे। तो कहीं ना कहीं हाई वोल्टेज ड्रामा चला। तकरीबन 2 घंटे तक ट्रैक्टर मार्च को लेकर किसानों की वार्तालाप हुई अधिकारियों के, और बाद में सहमति ये बनी कि जो ट्रैक्टर मार्च है वो सर्विस रोड पर निकाला जाएगा, तो जो कि जेवर के अंतर्गत था। बात करें दूसरी तरफ नोएडा की, तो नोएडा में कुछ किसान संगठन ऐसे थे जो दिल्ली चिल्ला बॉर्डर के आसपास ट्रैक्टर मार्च निकालना चाहते थे, मगर वहां भी पुलिस का कड़ा पहरा था। यानी कि खुद एसीपी, एडीसीपी, ज्वाइंट कमिश्नर ग्राउंड जीरो पे, तो उन्होंने समझाया किसानों की आप दिल्ली की तरफ नहीं जा सकते। अगर आपको ट्रैक्टर मार्च निकालना है या आंदोलन कर रहा है तो यहाँ महामाया फ्लाईओवर पर आप बैठ जाइए, उसके बाद आप अपने घर चले जाइए। तो जो कि देखने को मिला कल भी, तकरीबन आज 2-3 घंटे ऐसे थे जहां पुलिस को थोड़ी मशक्कत करनी पड़ी, किसानों के साथ बातचीत करनी पड़ी, वार्तालाप करना पड़ा, जिसके बाद कहीं ना कहीं किसान समझे और वो अपने घर लौट गए। अब देखिए क्या होता है 29 फरवरी को, क्योंकि संयुक्त किसान मोर्चा राकेश टिकैत द्वारा भी यही कहा गया कि 29 फरवरी तक हम दिल्ली कूच नहीं करेंगे। जिस तरीके से सैकड़ों की संख्या में जो पंजाब से जो किसान आए हैं एमएसपी को लेकर, एमएसपी पे गारंटी लेकर शंभू बॉर्डर पे, खनौरी बॉर्डर पे बैठे हैं और वहां जाने का नाम नहीं रहे। 2 हफ्ते हो चुके, यानी कि 13 फरवरी को जो पंजाब से किसान थे अपने पूरे जत्थे के साथ, पूरे तामझाम के साथ पंजाब से तमाम बॉर्डर पे अभी भी बैठे हैं,
मगर उत्तर प्रदेश का किसान क्या कहता है इस आंदोलन में, वो भी जानना बहुत जरूरी है न्यूज एक्स के व्यूवर्स को। क्योंकि देखिए 13 फरवरी को जब पंजाब से किसान बॉर्डर पहुंचे तो लोगों को लग रहा था कि तमाम किसान संगठन इनके साथ होंगे, इनके एक तरीके से इनके आंदोलन में शामिल होंगे। मगर कहीं ना कहीं जो पश्चिमी उत्तर प्रदेश का जो किसान है, या कहे पूर्वांचल का जो किसान है, या नोएडा एनसीआर का जो किसान है, या हरियाणा का जो किसान है, इस आंदोलन से बिल्कुल अलग है। इसमें उनका बिल्कुल भागीदारी, या कहे जिस तरीके से 2020-21 में जो किसान आंदोलन जब चल रहा था तो बिना बोले तमाम किसान संगठन पूरे देश से मैं बात करूं, पूरे देश की बात करूं, लोग वहां अपने ट्रैक्टर की उल्ली लेके आए थे और उनके साथ आंदोलन में बैठे थे। मगर इस बार का आंदोलन अगर देखा जाए तो ऐसा लगता है मेजर जो एक मोटा मोटा कि पंजाब के किसान केवल शंभू बॉर्डर पर या खनौरी बॉर्डर पर बैठे हैं, दूसरे प्रदेशों के किसान जो है उनका सहायता या उनकी तरफ से कोई योगदान नहीं मिला। जी आदित्य कुमार का भी रुक कर लेते हैं। He's joining us live from the Tikri border today. Aditya, the restrictions still there, the barriers still up at the Tikri border. Aditya, what are you seeing around you there today? जी उदय, पहले मैं बता दूं कि टिकरी बॉर्डर जरूरी क्यों था, यहाँ पे जो सख्ती बनाई गई थी वो क्यों बनाई गई थी, क्योंकि जब 2021 में हुए थे ये आंदोलन तो यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा रस हुआ था, बहुत सारी ऐसी बहुत बड़ी घटनाएं ऐसी हुई थी जो कानून व्यवस्था पे सवालिया निशान खड़ा कर रहा था। उसके बाद 2 हफ्ते जो अभी आंदोलन चला है उसके बाद जो स्थिति रही थी कि टिकरी बॉर्डर को बंद कर दिया गया था। यहाँ पर 5 लेयर 6 लेयर बैरिकेटिंग्स किए गए थे, सीमेंटेड जो बैरिकेटिंग्स थे वो भी थे, कटीले तार जो थे वो भी लगाए गए थे। लेकिन अभी ये स्थिति बनी हुई है कि यहाँ पर स्थिति ठीक हो गई है। देखेंगे आपकी जो बैरिकेटिंग्स है उसको हटा दिए गए हैं और हटाने के बाद में जो रास्ता है वो खोल दिया गया। आप देखेंगे कैसे ट्रैफिक जो है स्मूथली चल रहा है, बहुत पहले की तरह तो नहीं, क्योंकि जो रास्ते जो खाली किए गए हैं, जो सीमेंट बैरिकेड्स हटाए गए हैं या जो कंटेनर्स हटाए गए हैं वो सड़क के साइड में ही रखे गए हैं, जिस वजह से अभी भी पतली सड़क बनाई गई है, लेकिन पहले से बेहतर है। आप देखेंगे कि पूरा ये जो पैच था, ये टिकरी बॉर्डर का जो जगह है, ये टिकरी मेट्रो स्टेशन से लेकर के लगभग ये 2 किलोमीटर का ऐसा पैच था जिसको बंद किया गया था ताकि किसी तरीके की कोई समस्या ना हो, क्योंकि किसान यहाँ पर आने की पूरी आशंका थी, क्योंकि पिछली बार भी ऐसा ही हुआ था। तो इस सब की वजह से इसको बंद कर दिया गया था। लेकिन अभी आप देखेंगे कि पूरा का पूरा रास्ता जो है खोल दिया गया है। वहां पर एमसीडी का जो आपका टोल देखेंगे, टोल भी चालू हो गया है, जो ये दिखाता है कि यहाँ पर अब जो है किसी तरीके की कोई दिक्कत नहीं है। सूत्र ये भी बताते हैं कि किसानों के बीच में और भारत सरकार के जो मंत्री हैं उनके बीच में कुछ ऐसी बातचीत भी हुई है, जिसके बाद किसान थोड़े से नर्म हुए हैं। उसके बाद ये फैसला लिया गया है कि टिकरी बॉर्डर पे या जो सिंघू बॉर्डर है वहां पे सख्ती कम की जाए, सख्ती हटाई जाए, जिसके बाद जो है आम लोगों के लिए रास्ता खोला जाए। लोग जो है बहुत ही राहत की महसूस कर रहे हैं, ताकि तो ये बहुत ही 2 हफ्ते से बहुत ही परेशानी भरा जो समय था वो चल रहा था। जी आप देखेंगे कि ये इधर जो पेट्रोल पंप थे, लगभग 5 पेट्रोल पंप ऐसे थे जो लगभग बंद हो चुका था, जिसपे कोई कामकाज नहीं हो पा रहा था, जिसे अब जो है खोल दिया गया है, रास्ता खुला है। तो उसके बाद पेट्रोल पंप भी चालू हो गए, यहाँ पे जो दुकानें हैं और अस्पताल भी 2 थे वो भी खोल दिए गए हैं, और अच्छे से जो कम्युनिकेटर्स हैं, जो यात्रीगण है वो आना जाना कर रहे हैं और बहुत ही स्मूथली जो है सो लोग जा रहे हैं। जी उदय। For more such videos, subscribe to the NewsX YouTube channel, hit the bell icon.